Yes. Welcome, students. Welcome you all in our class of lipids. In last class, we had started studying the structure and function of the lipids. We had already discussed the functions of lipid molecules, the different type of different classes of lipids found inside the cell. In particular, we all know that fatty acid is the basic unit and it is found in all type of lipids. So we had studied the structure of lipids and how it affects the fluidity or rigidness of the membrane. We had studied the structure and function of fats. Now today we will discuss about those lipids which are actually found inside the membrane. So we will study the structure of membrane lipids, and when we talk about membrane lipids, the two major classes of membrane lipids are one is glycosophospholipid and second one is sphingolipid. So we will study the structure of both lipids, and later on we will study some special type of lipids like lipoproteins, how the lipid particles means lipid bounded with proteins, and special type of lipids, the cyclic lipids known as steroids. So here we will study membrane lipids. Two categories of lipids are found inside the biomembranes, and these are glycosophospholipid and the second one is sphingolipids. Well, glycosophospholipid is the major class of membrane lipid. It is the most dominant class of membrane lipid. And this glycosophospholipid is universal in nature. It means that it is found in all organisms, from bacteria to plants to animals, while sphingolipids distribution is restricted to animal kingdom, and these lipids are basically found inside the nervous system. So let us look both classes of lipids one by one. First we will study the structure of glycosophospholipid, which are universal in nature, found in all the biomembranes, whether it is a plasma membrane, whether it is organelle membrane. The basic structure of glycosophospholipid, it contains, as the name indicates, it contains glycerol, plus 2 fatty acid of phosphate group as well. So phosphoglycerol is linked with
two fatty acid chain, then this particular structure is called as glycophospholipid. So let us have a look on the structure of this the basic structure of glycophospholipid. These three components. Further, glycophospholipid may be of various types like phosphatidic acid, phosphatidylinositol, phosphatidylserine, it may be phosphatidyl-choline, phosphatidyl-ethanolamine, but all the types of glycophospholipids contains these three components. So these three components are basic to all types of glycophospholipids. So I am drawing the basic structure of a glycophospholipid. It contains glycerol 3-phosphate, but in particular CH2OH. This particular carbon is linked with the phosphate group. This is the phosphate group linked with glycerol. So it is called as glycerol 3-phosphate. The glycerol 3-phosphate is then linked with two fatty acid chains at this particular carbon. The fatty acid will be attached at the carbon number 2 and carbon number 1. This is R1, say this is R2. If any glycophospholipid contains unsaturated fatty acid, the unsaturated fatty acid will be always this fatty acid, जिसको हम यहाँ पे R1 से designate कर रहे हैं, and unsaturated fatty acid is always linked with the central carbon in case of glycophospholipid. So suppose this is an fatty acid containing unsaturated fatty acid. So again the same reaction. Two water molecules will be liberated and the structure will be esterified. The ester bond will be synthesized between the glycerol 3-phosphate and two fatty acids, just like this. This is the hydrocarbon chain R1. This is the hydrocarbon chain R2. That is CH3, CH2, 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 and like that. And if there is double bond, then the double bond will be the unsaturated fatty acid is actually linked with the central carbon. So this is the basic structure of glycophospholipid. Glycerol, phosphate, and two fatty acid together is known as glycophospholipid. This whole structure from phosphate to the hydrocarbon chain is designated as phosphatidyl. Phosphatidyl. And this particular structure from phosphate to carbonyl carbon, phosphate to carbonyl carbon is called as polar head, because the glycerol, the phosphate, and these carbonyl carbon contains many oxygen, phosphate, and these all atoms are actually polar molecules. So it is called as polar head. Polar means it has affinity with water. These structures can form hydrogen bond with water. While the hydrocarbon chain of both R1 and R2 is called as
नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल। जैसा कि आपने बीएससी में भी आपने कई बार देखा होगा कि जब आपने फ्लूइड मॉसिक मॉडल जो लिपिड का देखा है तो उसमें लिपिड्स को इस तरीके से पिक्चराइज किया जाता है, इस तरीके से बताया जाता है डायग्राम के अंदर कि एक तो होता है पोलर हेड और इसके दो होती है नॉन पोलर टेल, टू नॉन पोलर टेल। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ मेम्ब्रेन लिपिड। नाउ ये जो दो नॉन पोलर टेल है ये कौन सी है? एक तो R1 यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक R2 यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये दो नॉन पोलर टेल हो गई और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, दिस होल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली पोलर हेड एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली पोलर टू नॉन पोलर टेल। और अगर इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो वो इस तरीके से होता है, जो कि R1 वाला होता है और ये R2 है। तो अब आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं, डायग्राम समझ सकते हैं कि पोलर हेड में कौन कौन सी स्पीसीज आती है। द ग्लिसरॉल 3-phosphate इज देयर and the carbonyl carbon is there in the polar head group, while in non-polar tail it is purely hydrocarbon chain. It may be saturated or it may be unsaturated. So this is the basic structure of this glycophospholipid, and since this particular lipid has both polar group as well as non-polar group, therefore it is called as amphipathic in nature. एम्पीफैटिक नेचर मीन्स ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास पोलर समूह भी हो और नॉन पोलर समूह भी हो। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर पोलर और नॉन पोलर ग्रुप दोनों ही उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, तो उसे हम एम्पीफैटिक मॉलिक्यूल कहते हैं। सो ग्लिसोफॉस्फोलिपिड इज एन एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ एम्पीफैटिक मॉलिक्यूल। नाउ जैसा कि मैंने बताया आपको कि अलग अलग जो ग्लिसोफॉस्फोलिपिड है वो भी कई प्रकार की हो सकती है, डिपेंड करता है कि इस पोलर हेड ग्रुप से उन पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, विच ग्रुप इज अटैच्ड विद द पोलर हेड ग्रुप। से हम मान के चलते हैं, हम ये लेते हैं कि यहाँ से इस फॉस्फेट से कोई एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा? एक्स ग्रुप। अलग अलग ग्रुप और जुड़े हो सकते हैं। बाकी जो अलग अलग ग्लिसोफॉस्फोलिपिड है, जैसे कि फॉस्फेटिडिक एसिड है या फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल है या फॉस्फेटिडिल इथेनोलामीन है या फॉस्फेटिडिल कोलाइन है या फॉस्फेटिडिल सीरीन, ये जो विभिन्न प्रकार की जो ग्लिसोफॉस्फोलिपिड्स है ये सिर्फ और सिर्फ अपने एक्स ग्रुप में वेरी करती है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है। Now जब इस you will find the arrangement of the glycophospholipid in the biomembranes. So you will find that whether it is a plasma, whether it is a plasma membrane or any other organelle membrane like mitochondrial membrane or a chloroplast membrane or a membrane of smooth endoplasmic reticulum or a membrane of rough endoplasmic reticulum, the arrangement of glycophospholipid is in बाय लेयर फॉर्म। ग्लिसोफॉस्फोलिपिड हमेशा दो लेयर में पाई जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, जैसे मान लिया ये एक ऑर्गेनल, दिस इज ए पर्टिकुलर ऑर्गेनल। अब उस ऑर्गेनल के अंदर जो ये मेम्ब्रेन है, दिस इज द मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, बीच बीच में
कई सारे प्रोटीन्स हो सकते हैं जस्ट लाइक दिस, COOH। सपोज ये एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन मीन्स कि ऐसा प्रोटीन जो पूरी मेम्ब्रेन को स्पेन कर रहा है। ये उसका बाहर वाला या एन टर्मिनल एंड हो गया, ये सी टर्मिनल एंड हो गया, और बीच में जो पार्ट है उसको हम कहेंगे अल्फा हेलिक्स। ये हेलिकल स्ट्रक्चर है तो अपन कहते हैं ये एक तरह की अल्फा हेलिक्स है। अगर ये मेम्ब्रेन को कितनी बार स्पेन कर रही है, आर पार कर रही है, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, तो अपन कहेंगे इट इज 3 अल्फा हेलिक्स मेम्ब्रेन स्पेनिंग प्रोटीन। अब ये जो अल्फा हेलिक्स है जो मेम्ब्रेन के अंदर है, इसमें ज़्यादातर जो अमीनो एसिड्स होंगे वह अमीनो एसिड्स नॉन पोलर नेचर के होंगे, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है यहाँ से, ये पूरा एनवायरनमेंट जो है वो नॉन पोलर एनवायरनमेंट। तो ग्लीसोफॉस्फोलिपिड्स की जो नॉन पोलर टेल है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे को फेस करेगी, जबकि जो पोलर हेड ग्रुप होगा दोनों ही लिपिड्स का, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये एक पोलर हेड ग्रुप इधर साइटोसोल की तरफ है, एक पोलर हेड ग्रुप यहाँ पर उस ऑर्गेनल की ल्यूमेन की तरफ है, क्योंकि साइटोप्लाज्म हो चाहे ल्यूमन हो, दे बोथ आर एक्वस इन नेचर। एक्वस मीन्स दे आर रिच इन वाटर कंटेंट। सो पोलर ग्रुप जो है वो वाटर कंटेंट की तरफ होगा, या दे कैन फॉर्म इजी वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड विद इजीली विद वाटर। नॉन पोलर टेल कभी भी इस फेस की तरफ नहीं होगी, तो यह नॉन पोलर एनवायरनमेंट होगा। और अगर कोई प्रोटीन यहाँ पर एम्बेडेड है इसके अंदर जो स्पेन कर रहा है, तो उसके अंदर भी अमीनो एसिड्स मोस्टली नॉन पोलर नेचर के होंगे। अब जैसे मैंने बताया कि ऑलिगोसैकेराइड भी अटैच होते हैं, तो ऑलिगोसैकेराइड्स भी अटैच हो सके, तो ये तो एक ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। इस तरीके से ऑलिगोसैकेराइड्स लिपिड से भी अटैच हो सकते हैं। जैसे मान लिया पर वो लिपिड से भी अटैच होंगे तो कहाँ होंगे, पोलर हेड ग्रुप पर। कभी भी ऑलिगोसैकेराइड्स नॉन पोलर टेल से कभी भी अटैच नहीं होते, दे आर फाउंड लिंक्ड विद ओनली पोलर हेड ग्रुप। सो इस लिपिड को हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। तो कई सारी ग्लीसोफॉस्फोलिपिड्स ग्लाइकोलिपिड की तरह भी होती है कि वहां पर ऑलिगोसैकेराइड्स वहां पर अटैच्ड है। तो इस तरीके से ग्लीसोफॉस्फोलिपिड्स का अरेंजमेंट मेम्ब्रेन के अंदर होता है। दे आर ऑलवेज फाउंड इन बाइलेयर फॉर्म। द नॉन पोलर टेल्स फेसेस टुवर्ड्स ईच अदर while the polar heads are found in opposite direction, and these the polar head group is always towards aqueous solutions, या aqueous condition जहाँ पे भी होगी उधर की तरफ ही होंगे। मैं बात कर रहा था कि जो डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स एसोसिएटेड हो सकते हैं ग्लीसोफॉस्फोलिपिड से, वो किस टाइप के हैं और कैसे फिर उनका अलग अलग उनका नॉमेनक्लेचर किया गया है ग्लीसोफॉस्फोलिपिड्स का। This is R1, this is R2, that is non-polar tail, this is polar head group, glycophospholipid. Now, इस फॉस्फेट से एक X ग्रुप, कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है जिसको हम यहाँ पे कॉमन नाम दे रहे हैं X ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ X ग्रुप glycophospholipid are of following types. जैसे हम बात करें फर्स्ट, अगर X ग्रुप पर सिंपली एक हाइड्रोजन एटम
अवेलेबल प्रेजेंट हो या बॉन्डेड हो, तो हम उस X group and the name of glycophospholipid. अगर X ग्रुप पर सिंपली हाइड्रोजन है तो हम उसे कहेंगे फॉस्फेट, उस ग्लीसोफॉस्फोलिपिड का नाम दिया जाएगा फॉस्फेटिडिक acid. If X group contains choline, then the particular glycophospholipid will be called as phosphatidyl, क्योंकि यहाँ से लेके ये स्ट्रक्चर तो पूरा फॉस्फेटिडिल कहलाता है. Phosphatidyl. This whole structure is called as phosphatidyl. So it will be called as phosphatidyl choline. If amino acid known as serine is present, or serine is the X group, then it will be called as phosphatidyl serine. मान लिया कि अगर यहाँ पर एक शुगर अल्कोहल जैसे कि इनोसिटोल है, एक्स ग्रुप की तरह प्रेजेंट है, तो उसे कहेंगे फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल. दैट ग्लीसोफॉस्फोलिपिड विल बी कॉल्ड एज फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल. मान लिया अगर यहाँ पे इथेनॉल अमीन है, देन दैट ग्लीसोफॉस्फोलिपिड विल बी कॉल्ड एज फॉस्फेटिडिल इथेनॉल amine. So these are the diverse types of glycophospholipids which are found in biomembranes. Their basic structure is same. Basic X group को हटा दो तो बाकी सारा का सारा that is phosphatidyl वाला स्ट्रक्चर सब में कॉमन है. बस X ग्रुप अलग होने, मतलब ये ग्रुप अलग होने से इनका अलग अलग नाम दिया गया है. Of which the most common type of glycophospholipid is phosphatidyl choline. ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट अमाउंट में डिफरेंट मेम्ब्रेन्स के अंदर पाई जाती है फॉस्फेटिडिल कोलाइन. और अब आप क्लियरली ये समझ चुके होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या होता है. ये पोलर हेड ग्रुप है, तो पोलर हेड ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये हो गया. इवन एक्स ग्रुप इज आल्सो पार्ट ऑफ द पोलर हेड ग्रुप. और ये जो दो नॉन पोलर टेल है, ये कौन सी है, हाइड्रोकार्बन चेन है. तो क्लियर, दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लीसोफॉस्फोलिपिड. और ये हम कल पहले वाली क्लास में, इससे पहले जो हमने क्लास मैंने ली थी, उसमें डिस्कस कर चुका हूँ कि जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पे. इफ़ अनसेचुरेशन इज मोर, द मेम्ब्रेन विल बी मोर फ्लूइड इन नेचर. इफ़ द अनसेचुरेशन इज लेस, और वी कैन से इफ सैचुरेशन इज मोर एज कम्पेयर टू अनसेचुरेशन इन अ पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, देन मेम्ब्रेन विल बी मोर रिजिड. So it depends upon the property of or the availability of unsaturation, because unsaturated fatty acids are packed less efficiently while saturated fatty acids are packed more efficiently inside the membrane. So there are more stronger interactions, that is more stronger hydrophobic and van der Waals interactions. And in case of unsaturated fatty acid, there will be weak interactions of whether it is hydrophobic or van der Waals. Now we will move towards the second class of membrane lipid, which is whose distribution is quite restriction. Mostly the I am talking about sphingolipids. These sphingolipids are found only in animals, and in animals they are found mostly in nervous system, or they are associated with neurons or nervous system. Sphingolipids show restricted distribution.
and is found mainly in animal nervous system. This sphingolipid is actually made up of a molecule known as sphingosine. Actually, sphingosine is an amino alcohol, and this sphingosine molecule is linked with a single fatty acid, and a single fatty acid linked with the sphingosine molecule forms sphingolipid. The structure of sphingosine is just like this. This is the actually structure of sphingosine molecule. There is an alcohol group, there is amino group, so it is an amino alcohol. It also contains a hydrocarbon chain having a double bond, but this double bond is in trans conformation. While in I had mentioned earlier that in fatty acid the double bond conformation is always of cis conformation, so it is an exception here. It is linked with a single fatty acid molecule. Say this is a fatty acid R. So this fatty acid is attached at this point, at central carbon, to form a sphingolipid. Say this is R1. This fatty acid is R1. So this fatty acid is present here. So now there you can see there are two hydrocarbon chain. One is this, which is actually part of sphingosine, and this is another hydrocarbon chain. So these hydrocarbon chain will act as non-polar tail, just like this. So they are acting as a non-polar tail, while this particular structure will be called as polar head. So this is the structure. Well, अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है ग्लिसोफॉस्फोलिपिड in the sense that it also contain a polar head group and two non-polar tail. So again it is an example of amphipathic molecule. और जिस तरीके से ये अरेंज रहता है ग्लिसोफॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन से पाई जाती है, उसी प्रकार का इनका पैटर्न होता है, अरेंजमेंट का जो पैटर्न है इनका भी बिल्कुल वैसा ही होता है. बट ये भी 3 टाइप्स की हो सकती है और डिपेंड करता है कि इन 3 टाइप्स के अंदर कौन कौन सा अलग स्पीसीज और इन पर प्रेजेंट है. तो मान लिया इन पर भी कोई एक एक्स ग्रुप यहाँ पर अटैच हो सकता है. सपोज ऑन द बेसिस ऑफ एक्स ग्रुप कि यहाँ पे भी कोई एक्स ग्रुप इस पोलर रीजन से अटैच होगा, तो उसके एक्स ग्रुप के कारण हम ये जो स्फिंगोलिपिड है इसको भी हम 3 टाइप्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं. So again, on the basis of X group, the sphingolipid is of 3 types. First, अगर X group में फॉस्फेट हो, इट मीन्स यहाँ पर अगर फॉस्फेट समूह हो तो उस स्फिंगोलिपिड को हम कहेंगे स्फिंगोमाइलिन. स्फिंगोमाइलिन और फॉस्फो स्फिंगोलिपिड भी कह सकते हैं, और फॉस्फो स्फिंगोलिपिड
भी इसे कह सकते हैं। और ये लिपिड माइलिनेटेड नर्व सेल्स में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी? माइलिनेटेड नर्व सेल्स। जैसा कि आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान हो तो न्यूरॉन कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे मान लिया कि ये एक न्यूरॉन है, वो एक तो होता है, उसके जो एंड्स होते हैं वो पोलर मतलब डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं। तो जैसे इसे कहा हमने सेल बॉडी, ये एक सेल बॉडी है और ये एक्सन है। ये जो फाइन अपेंडेजेस हैं टाइप जो दिख रहे हैं आपको, ये एक्चुअली डेंड्राइट्स हैं। और जो न्यूरॉन का जो बेसल पार्ट होता है उसे गैंग्लियन कहा जाता है। और ये पूरा जो दिस इज़ एक्चुअली एक्सन हिलक, जहाँ से एक्सन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल यहाँ से जनरेट होगा और ये लिंक्ड रह सकती है विद द इससे पहले वाली नर्व सेल से। और दो नर्व सेल्स के बीच का जो स्पेस है उसे साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स ये प्रीवियस नर्व सेल है। इसके बाद भी एक नर्व सेल हो सकती है, उसके डेंड्राइट्स होंगे यहाँ पर, या हो सकता है कोई मसल्स या कोई दूसरी चीज़ हो सकती है, तो इसे हम मोटर न्यूरॉन कहेंगे उस समय। ठीक है, तो एक तरह से ये जो न्यूरॉन है ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन हो गई और ये जो न्यूरॉन है यहाँ पर ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन हो गई। एंड दिस इज द एक्सॉन, जहाँ पर एक्शन पोटेंशियल मूव करता है। और वो इस प्रकार से होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ से पॉजिटिवली चार्ज और बाहर की ओर से नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक तरह से क्या आयन चैनल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग से रन करेगा। अब माइलिनेटेड नर्व सेल्स में क्या होता है कि माइलिन शीट प्रेजेंट होती है एक्सॉन्स में। माइलिन शीट्स इज एक्चुअली मेड अप ऑफ दिस स्फिंगोलिपिड्स। वो इंसुलेशन का वर्क भी कर रही है एक तरह से। और यहाँ पर क्या होता है, सिग्नल एक जो एक्शन पोटेंशियल है वो जंप करेगा फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। इसको शायद नोड ऑफ रणवीर कहते हैं, क्योंकि जहाँ माइलिन शीट प्रेजेंट है वहाँ पे आयन चैनल्स वहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं। तो जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन है वो काफ़ी फास्ट होता है माइलिनेटेड नर्व सेल के अंदर। तो ये जो माइलिन शीट्स प्रेजेंट है, बेसिकली ये जो माइलिन शीट है इट इज़ मेड अप ऑफ अ पर्टिकुलर लिपिड। दैट लिपिड इज नॉन एज स्फिंगोमाइलिन और फॉस्फोस्फिंगोलिपिड। तो जहाँ पे माइलिनेटेड नर्व सेल्स होगा वहाँ पे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन फास्ट होगा। सो दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ न्यूरॉन। दूसरा आता है, अगर एक्स ग्रुप पर एक सिंगल मोनोसेक्राइड है, जैसे कि गैलेक्टोज, तो उसे कहा जाएगा सेरिब्रोसाइड। तो उस मेम्ब्रेन लिपिड को नाम दिया गया है सेरिब्रोसाइड। और ये भी ब्रेन सेल्स में पाई जाती है। ब्रेन सेल्स मेम्ब्रेन के अंदर सेरिब्रोसाइड्स टाइप की मेम्ब्रेन लिपिड पाई जाती है। उनका भी बेसिक स्ट्रक्चर वैसे ही होता है, स्फिंगोलिपिड प्लस गैलेक्टोज उनमें होता है। इस तरह से अगर एक्स ग्रुप पर यदि a long chain of oligosaccharide with sialic acid at end तो उसे कहा जाएगा गैंग्लियोसाइड। और ये जो लिपिड है ये
नर्व गैंग्लियंस पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नर्व गैंग्लियंस पर। ऑब्वियसली ये यहाँ पर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हो सकता है ये जो न्यूरोट्रांसमीटर से जो फील्ड वेसिकल्स हैं, देखो दो तरह की सिग्नलिंग होती है जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग, एक होती है केमिकल सिग्नलिंग। जब नर्व सेल पर जो सिग्नलिंग हो रही है दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग। पर जब एक नर्व सेल दूसरी नर्व सेल को एक्टिवेट करता है, उससे पहले जो सिग्नल मॉलिक्यूल है उसको साइनेप्स को कवर करना पड़ता होगा। तो ये जो साइनेप्स है, इस साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज किए जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये जो वेसिकल है वो या फ्यूज हो जाती है गैंग्लियन में और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, और ये नेक्स्ट न्यूरॉन पर उसके डेंड्राइट से बाइंड होते हैं और वहाँ पर वापस से उनको डीपोलराइज करेंगे। क्या करेंगे? डीपोलराइजेशन। तो ये जो साइनेप्स में जो सिग्नलिंग होती है उसे कहते हैं केमिकल सिग्नलिंग। जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन है, इट इज़ एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग, केमिकल सिग्नलिंग एंड देन electrical signaling. Obviously, so gangliosides may have some important role in transmission, in secretion of these neurotransmitters to synapse. So we had studied the three examples of sphingolipids. The first was sphingomyelin, ठीक है, which is found in myelin sheath. The second was of cerebrocytes. They are dominant. They are found in a membrane of brain cells, and gangliosides, they are found at nerve ganglion. So sphingolipids are more associated with nervous system. So these are the two major classes of membrane lipids. Now, steroids. Steroids, they are also organic substance which are non-polar in nature, and this is a different class of lipid molecule. They are cyclic in structure. Just like this. So different rings, there are 4 different rings. They are named as A ring, B ring, C ring and D ring. A, B, C rings जो है वो हेक्सागोनल है, या अपन कह सकते हैं कि हेक्सेन टाइप की है। उनके पास 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर है, जबकि ये अपन कह सकते हैं साइक्लोहेक्सेन है, जबकि जो डी रिंग है वो साइक्लोपेंटेन है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्टीरॉइड्स। And they are non-polar in nature, but so steroids are most purely non-polar. But if alcohol group is associated, अगर इनसे alcohol group, hydroxyl group जुड़ जाए तो इन steroids को फिर हम कहेंगे sterols. And sterols possess slight polarity, and that polarity is due to presence of this OH group. Sterols are actually steroids having alcohol group. And they are slightly polar.
इट मीन्स दे आर ऑल्सो एन एम्पीफेटिक मॉलिक्यूल, नॉन पोलर नेचर भी है एज वेल एज पोलर नेचर भी है. So in case of steroids, sterols are more common, more popular we can say. The common examples of sterols are, वैसे स्टीरॉइड्स की जहाँ तक बात करें तो जो ट्रू स्टीरॉइड्स है उसमें हार्मोन्स हो गए, स्टीरॉइड हार्मोन्स हो गए, जैसे कि एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स हो गए. They are actually true steroids. Testosterone, progesterone, estrogen, like that. जबकि स्टीरॉल्स की बात करें तो जब स्टीरॉल्स का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में जो बात आती है, जो नाम आता है वो है कोलेस्ट्रॉल, द मोस्ट पॉपुलर स्टीरॉल. अदर स्टीरॉल्स आर स्टिग्मा स्टीरॉल्स, ergosterol, like that. Cholesterol is actually an animal sterol, while these later two are basically found in plants. Cholesterol. This is the molecular formula, empirical formula of cholesterol. C27, 27 carbon structure, hydrogen 46 and single oxygen. This is the structure of cholesterol. Here important thing is that the hydroxyl group is linked with carbon number 3, and at the D ring there is a long hydrocarbon chain. Now cholesterol is a very important molecule inside for animals. It play many different roles inside the organism. For example, cholesterol play structural role as well. In its structural role, it is also part of biomembranes. ये मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, बायोमेम्ब्रेन के कंपोनेंट. जैसे मान लिया कि ये एक ग्लीसोफॉस्फोलिपिड है, तो ग्लीसोफॉस्फोलिपिड के साथ में कोलेस्ट्रॉल भी होता है. ये उसकी रिंग्स है, ये पेंटेन टाइप का स्ट्रक्चर और हाइड्रोकार्बन चेन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो जो पोलर ग्रुप्स हैं वो हमेशा सेल के बाहर की तरफ होंगे, ये इंटीरियर पार्ट में नहीं होगा. जो नॉन पोलर पार्ट है वो अंदर की तरफ रहेगा. कि जैसे मान लिया ये लिपिड बाइलेयर है, तो नॉन पोलर पार्ट जो है वो बाइलेयर वाले पार्ट में होगा और जो पोलर पार्ट है वो बाहर की तरफ होगा.
तो इस तरह के कोलेस्ट्रॉल भी बहुत मात्रा में, काफ़ी अमाउंट में मेम्ब्रेन से पाई जाती है। और वहाँ पर भी मेम्ब्रेन्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल की जो पैकिंग है ये काफ़ी रिजिड, ये पैकिंग जो है काफ़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये भी प्योरली जो रिंग स्ट्रक्चर है और एज वेल एज हाइड्रोकार्बन चेन, ये आसानी से पैक हो जाती है इन द अवेलेबल स्पेस, एंड इनके कारण हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी मजबूत होते हैं, वान डेर वाल इंट्रैक्शन भी मजबूत होंगे। तो इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी या उसकी रिजिडनेस को इंक्रीज करती है। सो इट कंट्रीब्यूट्स टू मेम्ब्रेन रिजिडिटी, जैसे कि हमने बताया था कि सैचुरेटेड फैटी एसिड करती है। तो एक तो इसका इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि ये मेम्ब्रेन्स का पार्ट होती है। दूसरा, मेटाबॉलिक इम्पॉर्टेंस भी इनकी ज़्यादा है। They generally serves as precursor for synthesis of various organic compounds like bile salts, steroids, many steroid hormones, as well as vitamin D। तो इनकी बायोसिंथेसिस में भी ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट और प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है। सो इट हैज़ ह्यूज इम्पॉर्टेंस इन ऑर्गेनिज्म, इन एनिमल्स। Lipoproteins, commonly called as lipid protein particles. Or we can say lipoproteins are particles whose function is to transport lipids in animal body। क्योंकि जो दूसरे इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे चाहे कार्बोहाइड्रेट हो या अमीनो एसिड्स हो या इवन न्यूक्लियोटाइड्स हैं या बेसेस वगैरह की जब बात करें, जो भी अपन फूड अपटेक करते हैं तो द फूड मस्ट बी रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या है, हमें हर बॉडी सेल को रिक्वायर है। कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको न्यूक्लिक एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है और फैट लिपिड्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये चार ही बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि पूरी सेल को बनाते हैं और उसको चलाते भी हैं, दैट इज रेगुलेट भी करते हैं, और उन्हीं के कारण वो फंक्शन कर पाता है, अपना वर्क कर पाता है। तो जो भी डाइटरी प्रोडक्ट है, जब उसका जो फूड में होता है, जब उसका डाइजेशन होता है, विच इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, डाइजेशन के बाद वो मोनोमरिक फॉर्म के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन्स में से उनका अब्जॉर्प्शन होता है और ब्लड के थ्रू वो अलग अलग टिश्यूज़ के अंदर जहाँ पे भी उनकी रिक्वायरमेंट है या जहाँ पहले उनकी जहाँ पर उनसे एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया जाता है, जैसे कि लिवर है तो लिवर में आएंगे, लिवर से फिर उनको अलग अलग टिश्यूज़ अलग सेल्स में ट्रांसपोर्ट किया सकता है। ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं या जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये क्या पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे ऑल आर पोलर मॉलिक्यूल्स, सो दे कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड इन जो ब्लड प्लाज्मा में आसानी से इनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो एक्वस कंडीशन है और वो पोलर मॉलिक्यूल एक्वस कंडीशन के अंदर आसानी से मूव कर सकते हैं। बट जहाँ तक बात करें लिपिड की, तो लिपिड नॉन पोलर नेचर को, दे आर ऑफ नॉन पोलर नेचर, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट नॉन पोलर सब्सटेंस इन अ medium which is aqueous in nature, and the medium is what, blood. So these lipoproteins are special particles, or we can say they are actually acting as a bag
ये ऐसे बैग है जिसमें लिपिड्स को या फैटी एसिड्स या कोलेस्ट्रॉल को रखा जाता है और ब्लड के माध्यम से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि उनका कांटेक्ट नहीं रहे एक्वस कंडीशन से। तो दे एक्ट एज सॉर्ट ऑफ बैग। जैसे मान लिया कि एक बैग है छोटा सा, इस बैग के अंदर कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल एस्टर मीन्स कोलेस्ट्रॉल प्लस फैटी एसिड, या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है। अब ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल स्ट्रिक्टली नॉन पोलर इन नेचर, कोलेस्ट्रॉल में थोड़ी बहुत पोलरिटी तो होती है। तो ये जो बैग्स है लिपिड बैग, ये जो लिपोप्रोटीन बैग्स है, ये एक्वस मीडियम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इनके पास पोलर ग्रुप्स होते हैं जो इजीली इस एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर मूव कर सकते हैं, जबकि जो नॉन पोलर सब्सटेंस है ये जो लिपिड पार्टिकल्स हैं इन नॉन पोलर सब्सटेंस को एक्वस एनवायरनमेंट से दूर रखते हैं और ब्लड में इनको इजीली फिर ट्रांसपोर्ट कराया जा सकता है। तो मेन जो फंक्शन है लिपोप्रोटीन्स का है, इट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स इनसाइड द बॉडी, लिवर से पेरिफेरल टिश्यूज तक या पेरिफेरल टिश्यू से लिवर तक या इंटेस्टाइन से लिवर तक, कहीं पे भी अगर लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है एनिमल बॉडी के अंदर, तो इट्स द ट्रांसपोर्ट इज हैपनिंग ड्यू टू दिस पर्टिकुलर लिपोप्रोटीन्स। Now, on the basis of, अब इन लिपोप्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये एक सिंगल लेयर के होते हैं, इट इज नॉट ऑफ बाई लेयर। जो फॉस्फोलिपिड की, जैसा अपने बायोमेम्ब्रेन में डिस्कस किया था कि ग्लीसोफॉस्फोलिपिड्स बाई लेयर में होते हैं, बाई लेयर अरेंजमेंट होता है इनका मोनोलेयर अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरीके से। This is a glycophospholipid. This is monolayer. तो ये पूरी एक लेयर होगी जिसमें मेजर कंपोनेंट्स क्या है, एक तो फॉस्फोलिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स वही ग्लीसोफॉस्फोलिपिड्स, पोलर हेड ग्रुप, 2 नॉन पोलर टेल, कोलेस्ट्रॉल भी कंपोनेंट होता है इस मोनोलेयर का। प्रोटीन्स भी इसका पार्ट होते हैं, दीज आर प्रोटीन, द एन टर्मिनल एंड द सी टर्मिनल, और ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है। और चूंकि लिपोप्रोटीन्स में है तो इसलिए इनको एपोलिपोप्रोटीन्स भी कहते हैं। तो आप देखेंगे कि इस लिपो पार्टिकल की जो मेम्ब्रेन है, दिस इज द membrane of lipoprotein. This membrane is a monolayer and the major components of monolayer are phospholipids, cholesterol and proteins, and proteins are particularly called as apolipoproteins. They play important role because these lipoproteins जब मान लिया किसी जैसे लिवर से कोई कोलेस्ट्रॉल या फैटी एसिड को किसी एक टिश्यू या एक सेल में ट्रांसपोर्ट करना है, तो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? ट्रांसपोर्ट ऐसे होगा कि लिवर्स में ये लिपोपार्टिकल्स का सिंथेसिस हुआ, ब्लड स्ट्रीम में वो फ्लो, ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से वो टारगेट सेल तक जाएंगे, और टारगेट सेल के अंदर क्या होगा, फिर इस लिपोपार्टिकल को, लिपोप्रोटीन को एंडोसाइटोसिस से
अपटेक किया जाएगा, एंड दैट पर्टिकुलर एंडोसाइटिस इज कॉल्ड एज रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटिस। और चूँकि उस स्पेसिफिक सेल के पास, टारगेट सेल के पास एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा, वो रिसेप्टर किसको आइडेंटिफाई करता है? इन एपोलिपोप्रोटीन्स को, और उन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं एलडीएल रिसेप्टर्स। और बेसिकली जो लिपोप्रोटीन होता है वो होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि कोलेस्ट्रॉल या फैटी एसिड को किसी टारगेट सेल तक लेके जाता है। तो ये तो इनका मेम्ब्रेन हो गया, और ये हो गई ल्यूमन। नाउ दिस, ये जो मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाली आउटर लेयर है, ये किसके कांटेक्ट में रहेगी? विद द एक्वस एनवायरनमेंट, द एक्वस एनवायरनमेंट ऑफ ब्लड स्ट्रीम। क्योंकि यहाँ पे पोलर ग्रुप से, पोलर हेड है, तो कोलेस्ट्रॉल है तो उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, प्रोटीन है, प्रोटीन इटसेल्फ अपने आप में पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो जनरली, और जो उसका एंड टर्मिनल एंड है वो तो पोलर हो गई, क्योंकि नॉन पोलर अमीनो एसिड ज़्यादातर अंदर की तरफ पाए जाते हैं। तो अब इस ल्यूमन जो है, ल्यूमन एक्चुअली एक तरह से यहाँ पर हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट है, और ये आसानी से बनाए जा सकते हैं पार्टिकल, क्योंकि जो नॉन पोलर टेल्स है वो सारी की सारी एकदम से अंदर की तरफ आ जाएगी। और इस हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट के अंदर फिर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है या कोलेस्ट्रॉल है, और फैटी एसिड्स को बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिपोप्रोटीन? इज टू ट्रांसपोर्ट दीज लिपिड मॉलिक्यूल्स from different parts of or in between different parts of the animal body. Now on the, अब चूँकि ये जो लिपोप्रोटीन्स हैं ये कई टाइप के हो सकते हैं, इनकी डेंसिटी के ऊपर, डेंसिटी के हिसाब से इनको अलग लिपोप्रोटीन्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है। So on the basis of density, lipoproteins are classified as first chylomicrons, VLDL very low density lipoprotein, शॉर्ट फॉर्म में इसको VLDL भी कहते हैं। थर्ड वन इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL। Fourth one is high density lipoprotein, that is called as HDL. In short form, it is HDL. So basically these lipoproteins are of 4 class. एक free albumin भी होता है, जिससे एल्बुमिन एक प्रोटीन होता है डायरेक्ट, उस प्रोटीन से जनरली कोलेस्ट्रॉल या लिपिड एसोसिएटेड होते हैं, पर हम यहाँ पे इन 4 पार्टिकल का डिस्कस करेंगे। LDL इज आल्सो नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल, while HDL is called as good cholesterol. और ये भी देखा गया नेचुरली द परसेंटेज ऑफ LDL एंड HDL differs in opposite sexes. It has been observed that कि females के अंदर HDL as compared to males ज़्यादा होता है, and females have low LDL content as compared to males. Now what is density? क्योंकि density के हिसाब से इसको क्लासीफाई किया है, density is equal to mass upon volume। तो मतलब अगर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है? हाईएस्ट डेंसिटी इसकी है, HDL की, और सबसे लीस्ट डेंसिटी किसकी है? दिस इज लीस्ट टू हाई डेंसिटी। डेंसिटी सबसे कम इसकी है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो सबसे बड़ी
जो साइज होती है लिपोप्रोटीन की वो किसकी होगी, काइलोमाइक्रोन की। VLDL की साइज थोड़ी और कम होगी, LDL की साइज थोड़ी और कम होगी और HDL की साइज बहुत ही छोटी होती है। अब इनका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना लिपिड्स का बॉडी में। और चूंकि डेंसिटी के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन तो किया गया है, पर यह भी ऑब्जर्व किया गया है कि इनका सबका जो रूट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो भी सबका डिफरेंट है। जैसे काइलोमाइक्रोन्स की बात करें तो इट ट्रांसपोर्ट्स ओनली एक्सोजीनस लिपिड्स। Here exogenous lipid means dietary lipids. कि जो डाइटरी लिपिड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद जो लिपिड्स हैं, जो फैटी एसिड्स हैं, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल्स हैं, वो कहाँ पर होंगे, इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन के अंदर ही फॉर्मेशन होगा काइलोमाइक्रोन्स का। और ये काइलोमाइक्रोन्स जो एक्सोजीनस लिपिड्स है, डाइटरी लिपिड्स हैं, थ्रू ब्लड स्ट्रीम ये इंटेस्टाइन से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे लिवर। So this is the function of chylomicrons. Chylomicrons are synthesized in small intestine and they transport dietary lipids from small intestine to liver. जहाँ liver decide करेगा इसका fate क्या है, क्या इसको ट्राइसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है या इसको ट्रांसपोर्ट करना है टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट वन इज VLDL। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, इनका सिंथेसिस होता है इन लिवर। दे आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर टिश्यू, लिवर और एंड दे ट्रांसपोर्ट काइलोमाइक्रोन को छोड़ करके बाकी जो दूसरे लिपोप्रोटीन्स हैं, वेदर इट इज़ VLDL, LDL और HDL, दे ऑल ट्रांसपोर्ट्स एंडोजिनस लिपिड्स। मीन्स जो लिपिड अंदर आ चुके हैं या अंदर बनते हैं या जो लिवर लिपिड सिंथेसिस कर रहा है, उन्हीं लिपिड्स को वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट एंडोजीनस लिपिड एंड जो इसका डायरेक्शन है ट्रांसपोर्ट का क्या होगा, VLDL ऑलवेज कैरीज लिपिड्स फ्रॉम लिवर टू पेरिफेरल टिश्यूज या ऑफ द बॉडी, या वी कैन से एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू, या लिवर के अलावा हिपैटिक टिश्यू के अलावा जो भी अलग अलग विभिन्न प्रकार के टिश्यूज बॉडी के अंदर है, वहाँ पर उनको ले जाने का काम VLDL का है। वी कैन से पेरिफेरल और अदर एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू। तो लिवर में इनका सिंथेसिस होता है VLDL का, और ये जो लिपिड्स हैं उनको ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड वेसल्स के माध्यम से एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू की तरफ ले जाते हैं। बट ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया है कि इन ब्लड स्ट्रीम्स these VLDL particles are then converted into small particles, small lipoproteins, and these small lipoproteins are actually called as LDL, low density lipoproteins. So because they are actually larger particles, they are converted into smaller particles
and these smaller particles can be easily uptaken by the एक्स्ट्रा हिपेटिक या सेल्स और वी कैन से जो पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं उनके जो सेल्स हैं वो उनको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं थ्रू रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. सो द थर्ड वन इज LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. सो इनका भी जो रूट ऑफ डायरेक्शन क्या है, वो लिपिड्स को लिवर्स की तरफ से एक्स्ट्रा या पेरिफेरल टिश्यूज तक लेके जा रहे हैं जहाँ पर भी उनकी रिक्वायरमेंट है. जैसे अलग अलग सेल्स में फॉर एग्जांपल एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर कि वहाँ की सेल्स को ग्लिसरॉल फैट्स लिपिड्स चाहिए क्योंकि उनको कोलेस्ट्रॉल चाहिए, क्योंकि उनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनाने हैं. तो वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा? थ्रू VLDL LDL. कहीं पर किसी मसल सेल को या किसी और जो फास्ट एक्टिंग सेल है वहाँ पे अगर ग्लाइकोजन ग्लूकोज स्टोर नहीं है तो उनको क्या चाहिए? फैटी एसिड चाहिए ताकि बीटा ऑक्सीडेशन हो सके फैटी एसिड का और वो ATP सिंथेसिस कर सके. तो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उस पर्टिकुलर सेल तक. तो किसके माध्यम से होगा? उसी VLDL और LDL के माध्यम से. बट LDL आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम VLDL ड्यूरिंग सर्कुलेशन. सो एक्चुअली दे इंक्रीजेज, अगर VLDL की मात्रा ब्लड में ज़्यादा है तो इंक्रीजेज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, लेवल, state which is known as hyperlipoproteinemia, and this particular state may leads to आर्थ्रोस्क्लेरोसिस. चूँकि ये आर्थ्रोस्क्लेरोसिस जिसको एक्चुअली हार्डनिंग ऑफ वॉल कहा जाता है, आर्टरियल वॉल, ये कई कारण से हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकता है. तो ये एक जो लाइफस्टाइल जो है एनिमल का उसके हिसाब से भी हो सकता है. बट व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस हाइपरलिपोप्रोटीमिया? हाइपरलिपोप्रोटीमिया मीन्स कि LDL की मात्रा ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा है. ये इसलिए भी हो सकती है क्योंकि हो सकता है कि LDL जिस टिश्यू तक, जिस सेल तक कोलेस्ट्रॉल को या फैटी एसिड्स को पहुंचाना चाह रहा है वहाँ पर पहुंच नहीं पा रहा है या उसका अपटेक नहीं हो पा रहा. तो इट मीन्स, हाँ, चूँकि मैं ये चीज़ बताना भूल गया कि पहले अपन ये देखते हैं कि LDL का अपटेक होता कैसे है. तो LDL का सिंथेसिस हुआ VLDL से सर्कुलेशन में और फिर ये पेरिफेरल टिश्यू तक लेके जाता है. अब पेरिफेरल टिश्यू या पेरिफेरल सेल जहाँ पर इसकी ज़रूरत है वहाँ पर इसका अपटेक कैसे होता है, तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू उसका देख लेते हैं. जैसे मैंने कहा था कि जो LDL की जो मेम्ब्रेन है, जो कि एक मोनोलेयर है, वहाँ पर स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं. वो उसका पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एपोलिपोप्रोटीन. और जो भी टारगेट सेल है, मान लिया दिस इज द टारगेट सेल, जहाँ पर लिपिड सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट है और इस LDL को उस सेल तक जाना है, तो वहाँ पर क्लैथरीन कोटेड पिट्स होती है. दिस इज क्लैथरीन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया उस सेल का, या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो गई, ये उसकी साइटोसोलिक साइड हो गया, और दीज आर स्पेशल प्रोटीन नोन एज क्लैथरीन. और ये पिट जैसा स्ट्रक्चर है, उन पिट जैसी स्ट्रक्चर में एक कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं. उन रिसेप्टर्स को कहा जाता है LDL रिसेप्टर्स. दीज आर LDL receptors, and this is called as clathrin coated pits.
LDL receptors are present in these pits. Now these LDL receptors are specific to this apolipoprotein. जो एपोलिपोप्रोटीन ए टाइप का भी हो सकता है, बी टाइप का भी हो सकता है, और ये LDL तभी एंटर करेगा, जैसे मान लिया दीज आर द, ये कोलेस्ट्रॉल है और फैटी एसिड है, कोलेस्ट्रॉल प्लस फैटी एसिड जो इस टारगेट सेल को चाहिए। अगर LDL रिसेप्टर नहीं होंगे तो ये इसका अपटेक नहीं होगा। अगर मान लिया इनके पास एपोलिपोप्रोटीन भी नहीं है तो भी LDL अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो फर्स्ट एपोलिपोप्रोटीन बाइंड टू LDL रिसेप्टर और इसके बाद इसका इंटरलाइजेशन होगा इस तरीके से। LDL रिसेप्टर्स एंड LDL टारगेट सेल के अंदर। A process, this whole process is known as receptor mediated endocytosis. इंटरलाइजेशन हुआ, ये एंडोजोम बना, इस एंडोजोम के अंदर दिस इज क्लैथरीन कोटेड पिट और क्लैथरीन कोटेड वेसाइकल बन जाएगी एक। ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट था, ये क्लैथरीन है, ये LDL रिसेप्टर्स हैं और इस LDL रिसेप्टर से बाउंड फॉर्म में है LDL। ये आगे चल करके हालांकि रिसेप्टर्स और क्लैथरीन है वापस से वो अपनी जगह पर जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रीसाइक्लिंग ऑफ रिसेप्टर्स। दिस इज कॉल्ड एज रीसाइक्लिंग ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आर व्हाट? प्रोटीन्स। और ये जो एंडोजोम है ये फिर लाइजोजोम से फ्यूज हो सकता है और लाइजोजोम क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल है और एस्टर है तो उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके कोलेस्ट्रॉल प्लस फैटी एसिड को साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर देगा और सेल फिर अपने हिसाब से चाहे कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करना तो कोलेस्ट्रॉल का यूज़ करेगा, फैटी एसिड को यूज़ करना तो वो अपने अकॉर्डिंगली इसको यूज़ हो सकता है। बट दिस इज़ द प्रोसेस बाय कि किस तरीके से LDL का अपटेक किया जाता है और LDL का अपटेक मीन्स किस तरीके से वो लिपिड उस टारगेट सेल तक पहुंच रहा है। तो इट मीन्स ये प्रोसेस टारगेट सेल तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि दिस बाइंडिंग ऑफ एपोलिपोप्रोटीन विद LDL रिसेप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। एक कारण हाइपर जो कि लिपोप्रोटीमिया का यह भी है कि टारगेट उस एनिमल के अंदर LDL रिसेप्टर्स जो हैं वो म्यूटेटेड हो गए हो, मीन्स उनकी शेप चेंज हो जाएगा तो LDL पार्टिकल्स बाइंड नहीं कर पाएंगे। जब LDL पार्टिकल्स बाइंड नहीं कर पाएंगे तो LDL पार्टिकल्स का इंटरलाइजेशन नहीं होगा, एंडोसाइटोसिस नहीं होगा। तो व्हाट विल हैपन, द लेवल ऑफ LDL मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, चूँकि सेल को अल्टीमेटली टिश्यू को उसकी डेफिशिएंसी होगी, चाहे कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड हो चाहे फैटी एसिड रिलेटेड हो, और जो उससे रिलेटेड सिग्नल्स लीवर के पास जाएंगे कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें फैटी एसिड या कोलेस्ट्रॉल भेजिए क्योंकि हमारी सेल्स को चाहिए। बट यहाँ पर वो अंदर जा नहीं पा रहा है और ये इसका कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ता जाएगा एंड इट मे लीड्स टू आर्थरोस्क्लेरोसिस टाइप ऑफ कंडीशंस। और तो एक कारण ये भी है। दूसरा, खैर ये तो एक अलग चीज़ हो गई, मेडिकल इशू है कि ये डिसऑर्डर है तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है या लाइफस्टाइल चेंजेस से भी हो सकते हैं। अब इसको कैसे क्योर किया जा सकता है, दैट इज़ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक, मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं जाना चाहूँगा अब इसके जस्ट बाद जो है HDL का। सो देयरफॉर क्योंकि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं LDL को। जबकि चौथा जो है दैट इज़ HDL। दैट इज़ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। और ये पेरिफेरल टिश्यूज से
वाया ब्लड स्ट्रीम कोलेस्ट्रॉल और जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है उसको लीवर तक लेके आता है, ताकि लीवर उस कोलेस्ट्रॉल को जो भी है उसका जिस तरीके से भी उसको मेटाबलाइज कर सके। बट अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है कि पेरिफेरल टिश्यूज़ या से कोलेस्ट्रॉल लेवल को या ब्लड स्ट्रीम से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर रहा है, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। सो इन ऑल हमने देखा कि किस तरीके से लिपोप्रोटीन, जो कि एक लिपिड प्रोटीन, दे आर लिपिड प्रोटीन पार्टिकल्स एंड दे आर द मेजर पार्टिकल्स whose function is to transport lipid molecules inside the between different part of the body, and on the basis of their density they are classified as VLDL, chylomicrons, HDL and LDL particles. So today in this class we begin with the study of membrane lipids, in which we had studied glycophospholipids, the types of glycophospholipids, the structure of glycophospholipid, polar head group, what is polar head group, what is non-polar tail. We had studied the second most important class of membrane lipid, that was sphingolipid, which is mostly found in animals, and in particular animals they are found in nervous system, and it was also of three types, that is sphingomyelin, cerebrosides and gangliosides. Then we had studied about steroids, what are steroids, and the important sterol, that is cholesterol, the structure of cholesterol, the various function of cholesterol, and finally the last topic of our lipid was lipoproteins, that is the particles which transport lipids across the membrane. So this is all about lipids. So as per your MSc syllabus, we had completed the structure and function of carbohydrate, we had completed the structure and function of lipids, and in my previous classes also, in my previous this lectures, I had also I'd given lecture on the structure of amino acids, the function of amino acids, as well as the primary structure of protein and secondary structure of protein. The tertiary and quaternary structure of protein is left, जो कि हमें किसी और क्लास में लूँगा. So दो बड़े पार्ट्स हम अब कंप्लीट कर चुके हैं. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो है एंजाइम्स. सो फ्रॉम माय नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एंजाइम. थैंक यू.